Okay, so let's start with physics portion of today's test. Question number 8. When the kinetic energy of an electron is increased, then the wavelength of associated wave will be. So this is question number 1. Kinetic energy और wavelength के दरमियान जो relationship है, this is lambda is inversely proportional to kinetic energy. Okay, so इसमें अगर काइनेटिक एनर्जी को हम इंक्रीज करते जाते हैं तो वेवलेंथ जो है हमारे पास डिक्रीज होगा. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2 है फॉर डी ब्रॉगली फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ सर्कमफेरेंस 2 पाई आर द डी ब्रॉगली फॉर द बोहर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ सर्कमफेरेंस 2 पाई आर द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन विल बी. सो m vr is equal to nh divided by 2 pi and n is equal to 1 for Bohr first orbit. So this is a 2 pi r is equal to h divided by mv and this is lambda. So lambda is equal to 2 pi r for Bohr for first orbit. So option A is the correct. Question 2, option A is correct. Question number 3, the momentum of photon is 2 into 10 raised power minus 16 gram centimeter per second. Its energy will be. So energy a photon is given by E is equal to Pc and momentum is given as it is 2 into 10 raised power minus 16 and the speed of light 3 into 10 raised power 8. But it is a in CGS system 2 into 10 raised power minus 16 gram centimeter per second. So we will use the CGS value. So this is 10 raised power minus 10 centimeter per second. So when you multiply this 6 into 10 raised power minus 6 orgs. So option number C is the correct in question 3. Option C is the correct answer. Question 4. Threshold frequency for a metal is 10 raised power 15 hertz. Light of wavelength lambda is equal to 4000 angstrom falls on its surface. Which of the following statement is correct? No photoelectron emission takes place. Photoelectron come out with zero speed. Photoelectrons come out with 10 raised power 3 meter per second. Speed photoelectrons come out with 10 raised power 5 meter per second speed. So let threshold frequency it is given as f naught is equal to 10 raised power 15 hertz and wavelength of the incoming light this is lambda is equal to 4000 into 10 raised power minus 10 meter. So let's find out the frequency for this light. So f is equal to c divided by lambda. So c 3 into 10 raised power 8 or 4000. So it is 4 into 10 raised power minus 7. 3 zeros जो है वो 10 के साथ ये तो minus 7 हो जाएगा. 0.75 into 10 raised power 15. तो ये 0.75 है और यहाँ पे 1 है. 1 into 10 raised power 15. तो ये ज़्यादा है. ठीक है. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इस इनकमिंग लाइट की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि ये फोटोन जो है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं करेगा. सो नो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन टेक प्लेस. फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट नहीं होंगे मेटल सरफेस से. सो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन ए. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है. इन ए फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट for 4000 angstrom the incident radiation the potential difference to stop the ejection is 2 volt. If the incident light is changed to 3000 then the stopping potential will be. हमारे पास जो है ये गिवन है कि 4000 angstrom के लिए रेडिएशन के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 वोल्ट है. अगर हम वेवलेंथ को कम कर दे 3000 angstrom कर दे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? तो वेवलेंथ को कम कर दे इसका मतलब है एनर्जी को ज़्यादा करेंगे, फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगी. तो ऑप्शन है 2 वोल्ट, लेस देन 2 वोल्ट, 0 ग्रेटर देन 2 वोल्ट. तो ये ग्रेटर देन 2 वोल्ट क्योंकि वेवलेंथ जब इंसिडेंट फोटोन की कम हो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अब ज़्यादा दरकार होगी. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन 6 है द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज एमिटेड फ्रॉम एन एक्स रे ट्यूब डिपेंड्स ऑन द करंट इन द ट्यूब, voltage applied to the tube, nature of the gas in the tube, atomic number of the. So हमारे पास इक्वेशन है EV is equal to HC over lambda, or this implies that lambda minimum is equal to HC divided by EV. So ये constant है. So lambda minimum this is a proportional to voltage. Voltage जितनी ज़्यादा होगी उतनी जो है wavelength कम होगी. So it voltage applied to the tube. So question number 6 में option number
बी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है the energy required to remove an electron in hydrogen atom from n is equal to 10 state. So n is equal to 10, this 13.6 divided by n square, so 10 square 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 13.6 divided by 100, so 0.136, तो इससे आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 7 में ऑप्शन सी आ रहा है, ठीक है। फिर जो है क्वेश्चन नंबर 8 है हाइड्रोजन एटम्स आर एक्साइटेड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू principal quantum number of 4, the number of spectral lines observed will be 3652. So number of spectral lines जो है हम किस तरह मालूम करते हैं, number of spectral lines this is equal to n into n minus 1 divided by 2. तो this is a 4 into 4 minus 1 divided by 2, so इससे 6 आ रहा है, ठीक है। So there are 6 spectral lines will be observed. So question number 8 is this is option number B. Question 9 है with the increase in principal quantum number the energy difference between two successive energy levels. दो एनर्जी लेवल्स के दरमियान एनर्जी डिफरेंस क्या होगा जब आप क्वांटम नंबर को इंक्रीज करोगे। सो यहाँ पे जो है दिस इज n इज इक्वल टू 1 2 3 ये 4 दिस इज 5 एंड सो ऑन। तो इन दो के दरमियान एनर्जी डिफरेंस 13.6 यहाँ पे जो है 3.4 है, यहाँ पे जो है 1.51 है, ये 0.84 है। तो आप देख ले जो क्वांटम नंबर इंक्रीज होता है तो क्या होता है कि एनर्जी डिफरेंस जो है ये कम होता है। सो विद इंक्रीज इन क्वांटम नंबर द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव लेवल्स डिक्रीजेस। सो इसमें ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ओके, फिर जो है क्वेश्चन 10 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इन a particular radiation emitted by the sun has a wavelength of 2900 angstrom. The temperature of the sun will be, सन की जो टेम्परेचर है वो क्या होगी। सन की टेम्परेचर मालूम करते हैं। सो लेम्डा टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो है 2898 माइक्रोमीटर केल्विन, सो 10⁻⁻⁶। और लेम्डा गिवन है, सो टी इज इक्वल टू 2898 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाई 2900 इंटू 10⁻⁻10। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इससे आ जाएगा ऑप्शन नंबर, इसको आप कैलकुलेट कर दें तो इससे आ जाएगा 9993 केल्विन। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, which of the following is the weakest force in nature? So weak nuclear force, electrostatic, Coulomb gravitational force, this is the weakest force in nature. So ये 11, क्वेश्चन 11, दिस इज ऑप्शन डी, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये वीकेस्ट फोर्स है नेचर में। ओके, फिर जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 12 है पायन्स बिलोंग टू मीजान फैमिली, बिरयान फैमिली, लिप्टॉन्स फैमिली और हाइड्रॉन्स फैमिली। सो पायन जो है ये बिलोंग करता है मीजान फैमिली से। क्वेश्चन नंबर 12 में ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 है द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम 1H1 इज -13.6, 13.6 इलेक्ट्रॉन बुलेट 0 और 2.4। सो 1H1 में जस्ट एक न्यूक्लियन है। बाइंडिंग एनर्जी जो है दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट आउट द न्यूक्लियंस। चूंकि हाइड्रोजन में 1H1 में जस्ट 1 न्यूक्लियन है तो इस वजह से इसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है, ये 0 है। सो इसमें ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। फिर जो है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो mvr इज इक्वल टू nh डिवाइड बाई 2 पाई एंड n इज इक्वल टू 2। सो mvr इज इक्वल टू 2h डिवाइड बाई 2 पाई, सो 2 कैंसिल आउट विद 2, सो दिस h डिवाइड बाई पाई। सो इसमें ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। क्वेश्चन 14 में ऑप्शन डी। क्वेश्चन 15 है glass is an amorphous material, glass crystalline, amorphous, both are non, so this is an amorphous material, so इसमें ऑप्शन बी ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 16 है pentavalent impurities in n type materials are a donor acceptor both depending upon the host. So n type material जो है pentavalent impurities n type materials में these are a donor. So this में ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, डोनर impurities। 89 this is question number 17 है
PN junction diode which emit light when current is passed through it, this is called light emitting diode. So option A is the correct answer, light emitting diode है, ठीक है. फिर जो है क्वेश्चन नंबर ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है, the section of transistor that applied charge carrier is called collector, base, emitter or non. So ये जो है हमारे पास, दिस इज क्वेश्चन नंबर 18 में ऑप्शन नंबर सी आ रहा है. ये एमिटर जो है ये क्या करता है, चार्ज को सप्लाई करते हैं, ठीक है. फिर जो है क्वेश्चन नंबर 19 है, अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्पेस एंड टाइम आर एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंट लिंक टुगेदर और बोथ ए एंड बी. सो स्पेस एंड टाइम जो है दीज आर अकॉर्डिंग स्पेशल रिलेटिविटी, दीज आर लिंक टुगेदर, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते. सो इसमें ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, लिंक टुगेदर. फिर क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आते हैं. The Compton wavelength of electron is a function of rest mass of electron, angle through which the radiation scattered, angle through which the electron recoils both A and B. So question number 20, Compton wavelength of electron is a function of angle through which the radiation scattered. So ये जो है delta lambda is equal to m naught c h divided by m naught c into 1 minus cos of theta. और ये जो है एंगल, दिस इज द एंगल थ्रू विच द फोटॉन स्कैटर्ड. मास भी है बट मास इज कांस्टेंट, रेस्ट मास जो है ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होता, तो इस पे डिपेंड नहीं करता, जस्ट इस पे डिपेंड करता है एंगल थ्रू विच द रेडिएशन आर स्कैटर्ड. सो ऑप्शन बी आ रहा है, 20 में ऑप्शन बी आ रहा है. ओके, फिर जो है द अनसर्टेनिटी इन एनर्जी, the uncertainty in energy emitted from an atom radiating for approximately 10 raised power minus 8 seconds. So uncertainty in energy मालूम करने, delta E delta T is equal to 6.6 into 10 raised power minus 34. Planck constant है, okay, Planck constant की ये वैल्यू है. तो ये जो है हमारे पास delta E is equal to 6.6 into 10 raised power minus 34 divided by 10 raised power minus 8, so 6.6 into 10 raised power minus 26 joule आ जाएगा. So this is option number A. 21 में ऑप्शन नंबर ए आ रहा है. ओके, 22 है क्वेश्चन नंबर 22, रेले जीन्स थ्योरी फॉर द ब्लैक बॉडी रेडिएशन फेल्ड इन रीजन ऑफ लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, शॉर्टर वेवलेंथ बोथ बी एंड सी. सो शॉर्टर वेवलेंथ में वो क्या होती है, फेल होती है, और हाई फ्रीक्वेंसी है, शॉर्टर वेवलेंथ है तो इट मींस हाई फ्रीक्वेंसी, तो बोथ बी एंड सी. और 22 में बोथ बी एंड सी, सो दिस इज ऑप्शन नंबर डी. द Compton effect, the momentum of incident photon is hf divided by c, hc divided by f या fc divided by h. So this is a 23 में option number B, this is the correct answer, this is a hf divided by c. फिर जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 24 है, if all of the following particles have the same velocity, then which of the following will be deflected more in the magnetic field? Alpha particle, beta particle, gamma and proton. So चार्ज जो है अल्फा पार्टिकल पे ज्यादा है, जब चार्ज ज्यादा है तो इस पे ज्यादा फोर्स लगेगा, K फिजिकल क्यों VB. तो ये जो है ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, वो चार्ज ज्यादा है, जब चार्ज ज्यादा है तो इसका मतलब इस पे ज्यादा फोर्स लगेगा. सो इसमें ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए, अल्फा पार्टिकल. फिर जो है हमारे पास है कंप्लीट द रिएक्शन, ये हमारे पास जो है रिएक्शन है एक्स और z, एंड दिस इज z+1, और यहाँ पे जो है a है प्लस बीटा माइनस बीटा नेगेटिव डिके है प्लस डैश प्लस क्यों. सो बीटा नेगेटिव डिके में हमारे पास एंटी न्यूट्रिनो निकलता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ये आंसर आ रहा है एंटी न्यूट्रिनो, और दिस इज ऑप्शन नंबर सी. सो 25 में ऑप्शन सी. 26 की तरफ आते हैं. 26 जो है वो क्या कहता है, द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल इज always positive, negative, both are possible or none. So rate of disintegration of radioactive material always negative. तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, 26 में ऑप्शन बी. 27 की तरफ आते हैं. द कॉपर आइसोटोप Cu6429 decay into nickel isotope by emitting. So कॉपर आइसोटोप है हमारे पास, और ये जो है डिके होता है ये 64 और 29, और ये
निकल में डिके हो गया 6428 बाय इमिटिंग, तो बीटा प्लस जो है पार्टिकल इमिट होता है। तो ये जो है कॉपर इस कन्वर्ट होता है किस चीज़ में, निकल में कन्वर्ट होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। सो 28 में ऑप्शन बी। ओके, फिर जो है 29 है, a radioactive element has half life of 6 minutes. If initial count rate is 824 per minute, the time taken by it to reach count rate of 206 per minute is so initial count rate जो है this is 824, और ये जो है फर्स्ट 6 मिनट में ये आ जाएगा सिर्फ 412 तक आ जाएगा, और नेक्स्ट 206, तो ये जो है 6 मिनट में ये और 6 मिनट ये, तो ये टोटल 12 मिनट। सो टोटल टाइम जो है वो कितना हो जाएगा 12 मिनट। सो इसमें ऑप्शन नंबर डी आ रहा है 29 में ऑप्शन डी। 30 जो है ये क्या कहता है, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू बी hammered, pressed and bent into useful shape. This property is called ductility, stiffness, toughness, both A and B. So इसमें ये ऑप्शन नंबर बी आ रहा है ductility। इस मटेरियल्स को हम कहते हैं डक्टाइल। सो दिस इज ऑप्शन नंबर बी। फिर जो है क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन 31 है, फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस गिवन है 20 न्यूटन बाय मीटर अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड इट प्रोड्यूस ए स्ट्रेन ऑफ 5, देन एनर्जी डेंसिटी विल बी। सो एनर्जी डेंसिटी जो है दिस इज इक्वल टू हाफ स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेस जो है दिस इज 20 न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर एंड दिस इज 5, सो इससे आ जाएगा 50 जॉल पर मीटर क्यूब। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ओके, 32 जो है, अकॉर्डिंग टू बेंड थ्योरी ऑफ सॉलिड इन इंसुलेटर द कंडक्शन बेड इज कंप्लीटली एम्प्टी। सो इसमें ऑप्शन नंबर ए आ रहा है 32 में ऑप्शन ए। ओके, फिर जो है 33 है, द स्लोप ऑफ बी एच कर्व। बी एच कर्व जो है इसकी स्लोप जो है वो किस चीज़ के बराबर है, परमिटिविटी और परमेबिलिटी और फिर जो है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बी एच कर्व की जो है इसकी अगर आप देख लेना तो ये हमारे पास हिस्टेरिस लूप है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे एच है, और ये स्लोप जो है इसका कह रहे हैं। तो स्लोप जो है दिस इज अ राइज डिवाइड बाय रन। तो राइज जो है बी है डिवाइड बाय एच है, और इसका स्लोप जो है दिस इक्वल टू परमेबिलिटी, म्यू के बराबर है परमेबिलिटी के, राइज डिवाइड बाय रन। तो इसमें ऑप्शन बी आ रहा है 33 में ऑप्शन बी। 34 जो है, द 34 कहता है द रेशियो ऑफ रिलेटिविस्टिक टू प्रॉपर लेंथ इज लेस देन 1, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, नॉन। तो रिलेटिविस्टिक लेंथ जो है वो कम होता है, प्रॉपर लेंथ ज्यादा होता है, कम को ज्यादा पे डिवाइड करो तो इससे लेस देन 1 आएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। 35 जो है वो क्या कहता है, Planck's quantum theory described the dash nature of black body radiation, discrete, continuous, both or none. Planck's quantum theory described the discrete nature of the black body radiation. So इसमें ऑप्शन नंबर ए आ रहा है discrete nature। फिर जो है 36 है, the mediating particle between nucleons inside the nucleus which is responsible for attraction are gluons, photon, graviton, both A and B. So gluons are the responsible for particle for the attraction between the nucleons inside the nucleus. So option A is correct। 37 जो है वो क्या कहता है, what is so the crystal of germanium or silicon at absolute zero act as conductor, semiconductor, insulator, both A and B. So germanium और silicon both insulator है, और 0 केल्विन पर जो है germanium और silicon दोनों semiconductor है, और at 0 केल्विन पर जो है these both behave like insulator. So option number C आ रहा है। फिर जो है 38 है, 38 कहता है what is the barrier potential of silicon diode at room temperature. So it's 0.7 volt, 0.3, 1.7 और 2.7. So barrier potential for silicon this 0.7 volt, germanium के लिए 0.3 है, लेकिन यहाँ पे silicon है, so this is option number A। 39 जो है ये क्या कहता है, for the formation of permanent magnet the material should be of used high corrosivity, low corrosivity, low retentivity, both A and C. So this is option number A। For permanent magnet the material should be of high corrosivity, means जिसके लिए आपको ज़्यादा जो है फोर्स डीमैग्नेटाइजेशन के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़े, ठीक है। And the last one, two wires of the same material have length in ratio 1:3,
when equal force are applied upon them the ratio of their extension. So जितनी लेंथ ज़्यादा होगी उतनी एक्सटेंशन उसमें ज़्यादा उतनी आएगी. So ये हमारे पास 1:3 है, तो एक्सटेंशन जो है इसमें जो आंसर है 1:9, 9:1, 3:1 और 1:3. तो जितनी जो है आपके पास लेंथ ज़्यादा है उतनी एक्सटेंशन भी उतनी हो ज़्यादा आएगी. तो इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर डी आ रहा है 1:3. So option D is the correct answer. Okay, thank you.